ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक की यूजर हॉन्टेड वेस्ली मैनर, जिसने अपने टिकटॉक पर कई ऐसे वीडियो अपलोड किए थे जो एक अबांडन घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। जब वो ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसी दौरान घर के एक जगह से कुछ आवाजें सुनाई देती ही वो जैसे उस जानिब बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Back in here again. Definitely feel some energy. Definitely feel something watching me, just like before. I can almost hear something too. That's what made me up. Hey, hey! Don't be scared. Don't be scared. Okay. I think that's gonna happen every time I go to chase whatever it is this is. क्या आप लोगों ने देखा इस लोकेशन के कमरे से एक बच्चा उसकी तरफ देखता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही इसकी नजर उस पर पड़ती है तो अंदर चला जाता है। वो फौरन जाकर उस जगह को चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और पूरी घर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो बच्चा उसको दोबारा दिखाई नहीं देता। तो क्या वाकई इस जगह पर किसी मखलूक और या जिन्नात की बच्चों का बसेरा है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो स्पेन के कैसल की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। जब ये टीम बाहर से इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो काफी एक्टिविटीज के साथ एक ब्लैक फिगर को भी देखा, जो हम अपनी प्रीवियस एपिसोड में आप लोग को दिखा चुके हैं। Che cos'è stato? Ragazzi, forte, più là dall'ingresso, raga. Sì, proprio l'ingresso, raga. Più che altro mi chiedevo se il rumore era un sì. Che rumore? Quello che abbiamo sentito tutti. È arrivato dopo una tua domanda, nel preciso. Se sei stato evocato da una setta satanica. Porca miseria! Sì, Hai sì. capito? Ok. जैसे कि आप लोग देख चुके हो कि इनको टीम मेंबर को पीछे से कोई टच करता है और उसकी थोड़ी देर बाद मीटर का लाइट ऑन होते हुए दिखाई देता है। जैसे ये टीम कैसल की नजदीक पहुंचते हैं, एक ब्लैक फिगर सेकंड फ्लोर की विंडो में एक और से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देता है। और ये एक्टिविटीज मैं अपनी प्रीवियस एपिसोड में कवर कर चुका हूँ। अगर किसी ने मिस किया है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ये टीम फौरन कैसल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिर ये फिगर क्या चीज हो सकती है। लेकिन हालात भयानक मोड़ लेती है और हमको कुछ देखने को ये मिलता है। Ipotizziamo che tu abbia visto veramente qualcosa. Sì. Perché qua vedo. Questa... L'ingresso del castello, il giardino, tutto. L'entrata anche proprio principale questa qua. È pesante e sono pieno di brividi da tutte le parti. E di là cosa c'è? È immenso però, ragazzi. Guardate le pareti. Ogni stanza enorme. Guardate le pareti, i soffitti. È vero. Ragazzi. Brilla, raga. Caspita, stavo guardando in aria. Brilla. Cioè in alto. Sta brillando, raga. Che sia il suo piano, proprio dove lei sta. Questa sembra una camera signorile. Sai cosa stavo pensando? Che volevo dirti prima? Stavo pensando
Che questo è il posto dove oggi abbiamo visto che per terra c'erano gli escrementi della capra. Sì. Ok? Esatto. Ed è lo stesso piano dove abbiamo, dove tu hai visto l'ombra e dove Simone ha visto l'ombra. Infatti. Che caso strano è lo stesso identico piano della capra. Infatti. È quello. Raga! Ti ha colpito? Cos'è stato? Non mi ha fatto niente! Cos'è stato? Raga, è di qui. Raga, è di qui. Raga, è di qui. Devi È di qui. È di qui. Sì! Non mi ha fatto male! Non mi ha toccato! Signore. Mamma mia, fai Paul, cosa c'è di qua? L'ho visto proprio andare addosso. Raga, ti ha tirato una botta devastante. Io l'ho proprio visto andare addosso, così. Giuro, Non t'ha Mi preso. sono preso uno spaghetto. però... Mamma Ma mi voleva mia. fare del male? Fai un po' tu, fai un po' tu. Non penso che fosse una cosa tanto carina. Che botta. Mio Dio, che paura. È forte, eh? Credetemi. Raga, è forte. pericoloso. Paolo, è pericoloso. Lo so Vuole che è farci pericoloso. del male. Sì. Ci vuole fare del male. L'ha detto, raga, l'ha detto. Vuole farci del male. Non è che c'è tanto da aggiungere. Però a sto punto dobbiamo capire. Dobbiamo per forza capire se è forte, se è agitato. Raga! Hai visto? Era giù. Era su, secondo me. No, a me Ancora sembrava giù. sopra. No, era sopra. Sembrava giù. Non lo so, no, Raga, usciamo di qua per favore. Usciamo di qua. È pericoloso, raga. È pericoloso. जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब टीम अंदर की ओर कैसल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसी दौरान उसके एक टीम मेंबर की पीछे जोर से दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। उनकी टीम मेंबर फौरन जाकर कमरा अंदर पूरा दिखाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तो दोबारा कहीं से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। जब ये टीम स्प्लिट होकर अलग अलग जगह को चेक करते हैं तो उसी दौरान हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। Capisco. Sei là? Ti dico che secondo me poteva essere o sopra o qua. Cos'era? Ma sai che forse era qua? Questa è la stanza più grossa dove rimbomberebbe di più. Porca miseria, raga! Cosa stai facendo? Mi ha spinto! Come ti ha spinto? Come ti ha spinto? Mamma bene? mia, che botta! Paolo, Aspetta hai che voglio male? guardare se mi ha spaccato la videocamera. Fermati un secondo, siediti. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उनका टीम मेंबर आगे की तरफ सीढ़ियों में जैसे ऊपर जा रहा था तो अचानक जैसे कोई मखलूक उसको धक्का देकर नीचे गिराता है, लेकिन शायद यहीं पर आप लोगों ने वो मखलूक को नोटिस नहीं किया। तो चलो एक और बार स्लो मोशन पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा जब वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था तो उसी दौरान उसकी कैमरा में एक परछाई जो सीढ़ियों में एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देता है। और अगर यहीं पर हम गौर से देखें तो वो परछाई दीवार की जानिब बढ़ते हुए गायब हो जाती है। तो क्या वाकई में ये कैसल हॉन्टेड है और उन्होंने एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया, और या यहाँ पर किसी और मखलूक का बसेरा है जो आए दिन लोगों को तंग करता रहता है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर पोलिश पैरानॉर्मल टीवी। पोलिश पैरानॉर्मल की तीनों मेंबर ऐसे एक अबांडन कैसल की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो कई अरसे से वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय यहीं पर काफी अजीब सी एक्टिविटीज देखी जाती है। जब ये टीम इस लोकेशन पर पहुंचते ही अलग अलग जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो काफी हद तक साइन कैप्चर करते हैं। Podaj mi swoje imię. Proszę. Dawid? Witam cię, Dawidzie. Mieszkałeś tutaj.
Bym kroki słyszał. Jakby ktoś stamtąd szedł. Chłopaki? Co tu Michał? Coś na górze. Cholera. इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही टीम की पहली मेंबर डिवाइस के थ्रू उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको काफी सवालात की जवाब मिलते हैं। टीम की दूसरी मेंबर जब अलग जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसको कई से फुटस्टेप की आवाजें सुनाई देती है और तीसरी टीम मेंबर को एक कमरे की जानिब से किसी चीज की गिरने की आवाजें सुनाई देती है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Wróciliśmy tam, gdzie zaczynałem odcinek. Czy ktoś jest tutaj ze mną? Na razie cisza. जैसे कि आप लोगों ने देखा जब इस कैसल के एक हॉल को ये टीम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसी दौरान तीसरी फ्लोर की विंडो में कोई मखलूक अपने आप को जाहिर करके फिर अंदर की ओर चली जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यही है कि उस एरिया की जाने के लिए कोई एक्सेस भी मौजूद नहीं था। तो क्या वाकई ये जगह हॉन्टेड है, उसने किसी मखलूक को कैप्चर किया और या इनका कोई दोस्त, तो उसको दाद देना पड़ेगा कि इतनी ऊंचाई पर वो चढ़ा कैसे। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूज़र डार्गोस पैरानॉर्मल जो एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। इस बार ऐसे ही एक अबांडन विलेज की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो रशिया में कई जंगलात के बीच में वाक़या है और कई दिहाइयों से वीरान पड़ा हुआ था। और डार्गोस इस लोकेशन पहुंचते ही एक घर की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले घर में कई जगह पर कैमरा प्लेस करके जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफ़ी हद तक साइन कैप्चर किए। Чего они боятся? Какую истину? Тут комаров очень много.
जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही वो स्पिरिट बॉक्स की थ्रू उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो अजीब किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद पीछे से कुछ आवाज सुनाई देते ही उस जानिब बढ़ते हैं तो एक दरवाजा उसके सामने खुलता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं Свет не включается. Рюкзак внизу. जब इस घर की सेकंड फ्लोर को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसी दौरान उनको कई फुटस्टेप की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो फौरन खिड़की की नजदीक पहुंचते हैं तो वो फुटस्टेप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ते हुए सुनाई दे रही थी। तो वो खौफ के मारे खिड़की से बाहर छलांग लगाकर इस लोकेशन से चले जाते हैं। और घर में उन्होंने पहले से कैमरे प्लेस किए हुए थे जिनमें हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेकंड फ्लोर से परछाई फर्स्ट फ्लोर तक आती हुई तीनों कैमरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या इस पूरी एक्टिविटीज के पीछे इस मखलूक का हाथ था? और हैरानी वाली बात यही है कि इतनी अच्छी कंडीशन होते ही ये पूरी विलेज क्यों वीरान पड़ी हुई है? तो क्या वाकई इसी विलेज में किसी मखलूक का बसेरा है और या महज उसकी अच्छी सेटअप और एडिटिंग का कमाल है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर आउटडोर शॉलोंग, जो एक चाइनीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है।
और चाइना में कई एक अबांडन स्कूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। कहा जाता है कि स्कूल की ज़मीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, बाद में यहीं पर एक स्कूल बनाया गया। उसी वजह से यहाँ पर काफ़ी पुरस्कार वाक़यात देखने को मिली, जैसे एक लड़की ने यहीं पर सुसाइड किया और कई लड़कियों ने खिड़की से चिलांग लगाकर अपनी जान दी। जब शॉलोंग ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफ़ी हद तक साइन कैप्चर किए।这他妈是火车还是啥？是火车还是啥？我操你妈这个火车！操你妈的！出来！操你妈！जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो सेकंड फ्लोर से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती ही वो उस जानिब बढ़ते हैं तो ये आवाज़ें वॉशरूम से आती हुई सुनाई देती है। जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है तो पीछे से दरवाज़ा बंद होता हुआ दिखाई देता है। वो खौफ के मारे बाहर निकलता है तो दोबारा दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है।我去你妈了个死逼！我操你妈了！
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसका कैमरा एक कमरे की जानिब होता है। जैसे कैमरा लेफ्ट की ओर रोटेट करता है तो वहीं पर कोई फिगर खड़ी हुई नजर आती है। वो उसे देखकर काफी घबराता है, लेकिन हिम्मत करके उस जानिब बढ़कर चेक करते हैं तो वो फिगर वहीं से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो कैमरा दूसरी जानिब घुमाता है तो वो चीज दोबारा हॉलवे की लास्ट में खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो फौरन जाकर उस जगह को भी चेक करता है, लेकिन वो फिगर भी वहीं से गायब हो जाती है। तो क्या वाकई में ये स्कूल हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है, और या जिन्होंने सुसाइड किया उनकी आत्मा अभी तक यहीं पर भटक रही है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।